everyone. Welcome back to another episode of Real Talk. And this time I have someone whose music I deeply, deeply, deeply admire. It is Just. Hi, Just. Hi, Welcome. Jyoti. How are you doing? I'm good. Welcome to Yes, Real Talk. Thank you so much for taking out the time for this. thank you so much for having me. Thank you. So, you must have seen my reaction, and I couldn't control the tears. It deeply moved me, the new song. While we will talk about that today, I want to talk a lot more about everything that's led to you becoming who you are as an artist today and the way you present your music to us and your art to us. I have to say right at the onset कि आपका म्यूजिक बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही वनरेबल है, बहुत ही उसमें स्पेस है where we can find our own stories within the lines, the pauses, I would say. And it's the kind of music that has refused to chase virality by following any formula or norm, but it has topped the global charts. So it's quite a phenomena. And I think its beauty is in the truth and honesty that you present and the truth and honesty that I feel it chases. So every time I research for a podcast, I know कैसे conversation को flow में रखना है. But with you, I had no Right. idea. I was like, where Awesome. do I That's the start? best. That's the And I best will place just to flow with be. it. Hawa, let the universe guide us. Right, exactly. You believe a lot in science from what I've noticed, and the universe guiding you towards the magic. 100%. Like that's honestly the story of my entire life, to be honest, because nothing in my life has been a result of any symmetry from like the conventional sense, क्योंकि मेरी पूरी life is purely based out of instinct. Because Mm, how I arrived here, I have no idea. But obviously, I have an idea, but it does not make any conventional sense. It's purely me just listening to my own entire inner voice and following that. तो वो वही हुआ है. तो I say it's a great place. You don't have any idea. I think we'll be great. So I want to ask you exactly this कि आप मैंने जो बहुत रिसर्च करी है and I heard कि आप रात को 2 बजे उठे and you just knew in that moment you had an epiphany that I need to express my self and my story through music. That is going to be the medium. This is it. And मैंने एक बहुत ही interesting और motivating thought सुना था recently एक podcast में कि don't focus so much on making the right decision, focus on Right. making a decision and then making it the right one. And I think you are the perfect embodiment of that thought. You've made a decision and then you went and did everything you needed to do to make it a right one. You know? Tell us about that whole journey and moment. Right. Right. मतलब I honestly don't sit back and analyze my life too much, to be very honest with you. But like when we have conversations like this, that is only when you kind of make patterns of what your life has been and things like that. But Yeah. uh, I can only say that like forget about music. Like everything about my life has been a result of just chasing an inner feeling. And I'll tell you an example how it all started. Hmm. Right. So I was 3 years old. Hmm. 3 साल का था मैं. Huh. 3 या 3.5 साल का. और दिल्ली में ना एक स्कूल था मेरे घर के पास. बचपन में आपको फर्स्ट स्कूल में नहीं डालते पेरेंट्स वगैरह, जो प्री नर्सरी या फिर जो भी होता है वो. Yeah. तो उसमें एक स्कूल में डाला होता. दैट वाज लाइक 500 meters फ्रॉम माई होम, और आई डोंट नो 700 meters, बट लाइक वेरी क्लोज, राइट. Hmm. एंड एंड द टीचर देयर वाज हॉरिबल टू मी. Like I have clear memory. Like she used to shout at me, and I used to have like almost tears in my eyes and things like that. And so सुबह आता था, रिक्शा आता था घर पर ना कि आपको स्कूल ले जाने के लिए. Hmm. तो आया सुबह रिक्शा. और उस टाइम पर मैंने बोला मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. मैं आई वॉज रेडी इन माई यूनिफॉर्म. पेरेंट्स ने रेडी करा दिया था जो भी यूनिफॉर्म वगैरह थी. तो मैंने बोला कि मैं ना ये स्कूल नहीं जाऊंगा. अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को बोला मैंने, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. तो नॉर्मली व्हाट वुड हैपन इन एनी हाउस होल्ड majority, Hmm. माई एनालिसिस इज दैट पेरेंट्स वुड ईदर फोर्स यू कि नहीं Hmm. नहीं तुम जाओ आज, या फिर आपको प्यार से समझाते हैं बेटा कुछ नहीं होता आज जाओ. और या फिर कुछ तरह से दे मैनिपुलेट यू टू गो, Yeah. और टू मैनिपुलेट यू टू मेक दैट हैपन. Hmm. सो आई टोल्ड देम कि नहीं मेरे को ये स्कूल नहीं जाना. राइट. और मेरे डैड का रिएक्शन था उस टाइम पे, ठीक है मत जा. ठीक है. Amazing. तो मैंने Hmm. बोला अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी होती है. तो फिर तो उन्होंने बोला फिर क्या करना है तेरे को. मैं बोला मेरे को ना, मेरा जो कजन है, वी वर इन अ जॉइंट फैमिली देन. तो Hmm. मैंने बोला जहाँ पे वो जाता है ना मेरे को उस स्कूल जाना है. तो आई गॉट एडमिटेड टू दैट स्कूल दैट वेरी डे.
and that changed the trajectory of my life. Because now I think of it, obviously at that age you don't Wow. think of the monumental event that was. But now that I think of it, my entire life has been that shifted just the entire journey of how I see my life. Because Hmm. uh, उस टाइम पे मेरे को बहुत क्लियरली रियलाइज हो गया कि ये पूरी लाइफ ना मेरी अपनी लाइफ है, पूरे Hmm. डिसीजन मेरे अपने हैं. अब मैं फेल करूंगा तो मेरे डिसीजन है, सक्सीड करूंगा तो मेरे है, बट लाइक आई हैव द लिबर्टी ऑफ मेकिंग माई ओन लाइफ चॉइसेस, एंड इट्स बीन द वे सिंस देन, लाइक थ्रू आउट. तो एवरी सो आई जस्ट फॉलोड माई इंस्टिंक्ट थ्रू थ्रू आउट माई लाइफ. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है ना, लाइक Pivotal point. Yeah. pivotal point, and obviously you look back at that now, and that makes a lot of sense कि यार आपको बचपन में अगर इतनी फ्रीडम मिल जाती है ना. और मेरे को Hmm. रियलाइज फियर भी था जब मैं नए स्कूल जा रहा था कि क्या ये मैं गलत तो नहीं ले लिया डिसीजन. वो सारे थॉट्स मेरे को बहुत क्लियरली, वो फीलिंग याद है. बट मेरे को ये था कि Wow. यार ये मैंने ले लिया है. एक तो ओनरशिप होती है ना, Hmm. लाइक यू मेक एन ओनरशिप of a certain decision, and there's nobody to stop you. It's just your decision, Yeah. and if it's right, if it's wrong, that time will tell. But you are the captain of your ship. So Yeah. that I believe. तो पूरी लाइफ ही उस तरह से निकली है मेरी. That's incredible कि आपको 3 साढ़े 3 की उम्र से पता चल गया था which energy I don't want to go towards and where I want to move, and then Sure. that's amazing. So I feel like you come across as a very old soul if you believe in that concept, and I feel like souls will also pick their parents before I they're born, 100% believe that. I है ना? 100% believe that. 100%. कोई डाउट ही नहीं है. So मतलब मैं तो मानता हूँ इस चीज को. हाँ, तो mad props to your father for just saying जाओ. like I'm very grateful to have the kind of parents that I have, because Hmm. although I come from a middle class family, and there have been obviously हर family के अपने sort of 100 challenges होते हैं, 100 complications, like every story, right? Hmm. But they have never interfered in my life choices, in the sense that even when I decided to become a musician, जब वो जो आप बोल रहे थे कि 2 बजे एपिफेनी हुई, Hmm. तो एपिफेनी जब हुई तब मेरे को म्यूजिक ना बजाना आता था, ना गाना आता था, ना मेरे को गिटार बजाना आता था, कुछ नहीं आता था. And I was doing very well उससे पहले. It's not like कि Yeah. my life was going in a very upward slope, because I became a CA very quickly, because Hmm. I was sort of like intelligent पढ़ाई वढ़ाई में. तो मैं Hmm. सीए बहुत जल्दी बन गया. फिर मैंने फिल्म मेकिंग में आया, और मैं फिल्म मेकिंग में बहुत First जल्दी AD. राइज किया. Yeah. First Like I AD, है ना? became, yeah, chief AD and like second Right. unit director, and things like that. So won a few awards also for a couple of my short films that I Hmm. did with a friend when we were collaborating. तो मैं बोल रहा हूँ, my rise was very very Steady. steep, Yeah. steady Okay. and steep, like Yeah. upwards, like very fast. And then I made this decision which made no sense. पहले एक करियर स्विच करके आया, बोल रहा है म्यूजिशियन हूँ और मेरे को म्यूजिक बजाना नहीं आता, ना मेरे को, मैं अभी गाना भी नहीं निकाल सकता अगले 5-6 साल. Hmm. तो मैंने, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग कन्विक्शन थी, तो आई हैव लाइक नथिंग बट ग्रेटिट्यूड टू माय पेरेंट्स फॉर नॉट, मेरा नहीं तो सिर खा सकते थे वो, और बड़ी Hmm. मुश्किल कर सकते थे मेरी लाइफ, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने. तो दे अलाउड मी टू बी. तो I think they had the faith ना कि he's smart enough, अगर वो डिसीजन लेता है तो उसको राइट बनाने में वो सब कुछ लगा देता है, ऐसे नहीं. He's not I just. think not only that, I think they are like unique parents. So we are 3 brothers. तो तीनों की लाइफ में they like allowed all of us to just be. Not Be. only like faith, उनका भी एक deeper spiritual feeling है कि इनकी लाइफ की डेस्टिनी इनकी है. तो ऐसा नहीं है That's right. कि सिर्फ, इट्स नॉट लाइक कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा इसलिए इसको वी अलाउ हिम टू बी. Yeah. इट्स अ more deeper feeling that it's this guy's journey. Let him experiment, let him fail, let him do whatever, because they've also Hmm. gone through their own ups and downs. So like you said, we all choose our parents, and I think I am very grateful to have chosen mine. Nice, nice. They're Yeah, letting you live out your destiny the way you have to, yeah, है ना? yeah. So I want to ask you about this very unique thing, which is your name. Yeah, जो आपने खुद बनाया, एक नया शब्द खुद इन्वेंट किया, खुद अपने आप को दिया, वो नामकरण अपना खुद किया, वो बहुत कम लोग करते हैं. But I was thinking कि हमारी फिलोसफी में ही माना जाता है ना कि हर एक शब्द का जब आप उसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, कहते हैं, जपते हैं, every sort of the sound has a particular feeling or emotion attached to it. एंड जब कोई बेबी भी जन्म लेता है तो हम फर्स्ट लेटर पे बहुत एम्फोसिस देते हैं बिकॉज इट मैचेस द एनर्जीज व्हेन यू आर बोर्न. डिड यू हैव एनी ऑफ दीज थॉट्स इन माइंड व्हेन यू आर कमिंग अप विद दिस न्यू वर्ड एंड न्यू नेम फॉर योरसेल्फ, बिकॉज इट मीन्स अ स्टेट ऑफ लव एंड एनर्जी? yeah. सो what was the thought process? Honestly, I'll tell you that
that entire like 6 7 months, right? Before that epiphany happened. Hmm. Uh, or I'm not a big fan of words like epiphany, but just to simplify The moment. things, and yeah, when that moment happened, uh, I was doing a lot of like internal work, a lot of Hmm. going very deep into myself, doing a lot of meditation, doing a lot of self-reflection and working out. Like all the time was spent on me, my physical body and my internal body, right? Hmm. And I was going deeper with my experiences and things like that. And वो 2 बजे मैं उठा ना, और मेरे को लगा कि मेरा एक्सप्रेशन म्यूजिक है और मेरा नाम जुस्त है. इट वाज लाइक दैट. इट वाज नॉट लाइक अ मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी कि ओ नया शब्द बनाते हैं और वो शब्द का ऐसे वर्ड की ये इट वाज नॉट एन इंटेलेक्चुअल एफर्ट, इट वाज नॉट एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज. If it was an intellectual exercise, I would have never chosen the name. If it Yeah. Okay. if it was like if it was something that I had to do effort around, I would have Hmm. not. It was just वो बस something अंदर that से आया. flowed. हाँ. वो आ गया जैसे आ गया. फवारा फटता है ना, जैसे कोई रेनबो आता है या फिर कुछ कोई मैजिकल सनराइज आ जाता है, वो आ जाता है, वो उसका कोई वो नहीं है, उसका कोई वो है, वो है, वो ट्रू है. तो वो इट वाज सो ट्रू, इट वाज मोर रियल देन like the moment that we are having right now. It's difficult to explain, but it was, I get and it. I had no option but to follow that. Yeah. Like so yeah, that's the story. And then obviously I when the name came, then वो पहले मेरे को था कि मेरे को मेरा नाम जुस्त है, कि मैं स्पेलिंग के साथ थोड़ा सा मैंने टाइम स्पेंड किया है, टू बी ऑनेस्ट. पहले Okay. आई वाज थिंकिंग ऑफ स्पेलिंग इट JUZTH. देन आई वाज लाइक नहीं, उस पे मैंने JUSTH उस पे मेरा, पर वो द साउंड द फीलिंग ऑफ द साउंड was in that very moment. And then what does it mean and things like that, that I kind of made it on my own. It, Hmm. मतलब, but the source of it was in that very moment कि मेरा नाम जुस्त है. That's incredible. It's like you're channeling something higher, you know, and it just pops up. I see that as my duty as well and Hmm. my job as well. Is like मेरा काम बस अपना एंटीना साफ करना है. Yeah. एंड म्यूजिक तो है ही दुनिया में और यूनिवर्स में फैल ही रहा है, आ ही रहा है मेरे पास, रोज ही हर सेकंड आ रहा है. मेरा काम बस जो अपना एंटीना है उसको साफ करना है ताकि मैं वो फ्रीक्वेंसीज रिसीव कर सकूं. तो Hmm. उतना मेरा मानना है. तो एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड दैट. It's beautiful. I long to meet artists like you because these are the kind of like things I believe in as well. You know, there's a village in Northeast जहाँ पे बचपन में ही they give a whistle as a name ओके. to every child. So every person's name is a tune, is a ओह वाओ. melody. ओह वाओ. So if you had Oh to wow. sing just and give it a melody, what would it be? Can I ask you that now? I I Yes. will probably get to your next podcast and then give you an Okay. answer by that. No On worries, the no worries. spot, on the spot मेरे को ऐसे कुछ आ नहीं रहा दिमाग में. But that's a great exercise, I feel. I have never heard of Next, anything like that. That is so good. I'll share the link with you Yeah, later. please do. Please do. But you say कि you are in this pursuit of magic and you are looking to make songs that live well beyond your own years, 500, 600, 1000 साल, and you know classics that basically will age well and will tell timeless truths. Hold timeless truths within them. ये बहुत ही old school quality है. I feel like I heard somewhere you say that you connect with Kishore Kumar. So I just Right. feel like there's that whole sort of retroness in it because हमारे कंट्री के रेट्रो सॉन्ग्स और पुराने गानों में वो क्वालिटी बहुत होती थी और आपके गानों में भी फील होती है. इट्स ऑल्सो इन द वे यूर कंस्ट्रक्टिंग योर मेलोडीज, आपके लिरिक्स, जो फ्रेजिंग आप करते हैं, जो वोकल डिलीवरी होती है, जिन जैसे आप गानों को स्ट्रेच करते हैं, पॉजेस प्लेस करते हैं, वो बहुत इंटेंशनल लगता है. सो आई वांट टू जस्ट आस्क यू अबाउट दैट क्रिएटिव प्रोसेस कि while you're pursuing that final form of the song and that feeling, is the process fun for you या फिर आप कभी कभी frustrate भी होते हैं when that feeling is elusive? Yeah, it is. It is. It is. It is. मतलब it's a complex answer to be very honest with you, क्योंकि मैं ऐसे ना, मेरे को बहुत जल्दी, अगेन मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हो सकता हूँ आंसर Please, में साउंड please. करूँ, बट मैं ना कोई ऐसे तो तो मेरा ये है कि हम सब ना वो सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा तो बहुत खुशी मिलेगी या फिर बहुत फन होगा. मैं Hmm. वैसे नहीं सोचता. मेरे लिए तो ना मैं वो सोच के आया था, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है क्रिएट करना बहुत बार. इट इज नॉट Yes. इट इज नॉट इजी, स्पेशली ऐसा नहीं है
मतलब इट कैन बी, मतलब देर आर मोमेंट, इट्स लाइक लाइफ, राइट? Yeah. द क्रिएशन प्रोसेस इज लाइक लाइफ। आपका रोज, कभी आप खुश हो, कभी आप उदास हो, कभी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो Hmm. द स्पेशली क्योंकि मेरा प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज सो elongated, Hmm. then that makes you go through every like emotion cycle. तो Hmm. देयर इज जॉय व्हेन यू फील अरे यार क्या मैजिक क्रिएट हो रहा है, तो फिर जॉय क्रिएट होता है। जब नहीं हो रहा तो आप सिर फोड़ते हो यार अपना कि क्या हो रहा है। तो इट्स लाइक दैट, वो साइक्लिकल चैप्टर्स तो चलते रहते हैं। तो मेरे लिए इट कैन गेट फ्रस्ट्रेटिंग, इट कैन गेट एवरीथिंग, बट आई टेल यू द फॉर मी इट्स नॉट अ टाइम बाउंड थिंग, टू बी Hmm. वेरी ऑनेस्ट। मे बी हो सकता है अभी मैं Hmm. ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, हो सकता है मैं कई गाने ऐसे 10 मिनट रिकॉर्ड करके डाल दूं, मेरे लिए ऐसे कोई देर इज नो लॉजिकल Fix. बेंचमार्क कि Yeah. ये 1 साल लगेगा कि 10 मिनट लगेगा। इट्स जस्ट वो है कि नहीं, और वो Hmm. है कि नहीं, बस वही मेरे लिए एक चीज है। अब उसके लिए वो मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस रहे तो फ्रस्ट्रेटिंग सही, मेरे लिए अगर उसमें बहुत मजे आए तो वो बहुत मजे सही। वो इज द सेकेंडरी चैप्टर, इज अ सेकेंडरी इमोशन। द मोस्ट Yeah. इंपॉर्टेंट थिंग इज The दिस chase. Yeah. is this chase, yeah, is this thing that you have, and only I can feel it. It's not, Yeah. it's मेरा ऑनेस्टली, मैं अगर साइड थोड़ी सी बात करूं, मेरे को ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कुछ ये बना लूं, या फिर मैं, देखो मैं बहुत जल्दी इतने गाने करके ये मार्केट कैप्चर, मेरे को कोई इस टाइप का कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मेरे लिए इंटरेस्ट सिर्फ एक है कि मैं ये, क्योंकि मेरे लिए आई थिंक वन ऑफ द की डिफरेंसेस वाई I might sound different, and one of the reasons why I operate differently from most of the people, I'm not doing a comparative analysis, but I'm just saying, is the fact that the reason why I'm doing this is very different. Yes. Your It comes why. from that, Your why it is so comes, unique. yeah, it comes from that moment that I'm talking about. And that moment gives me a lot of courage. It gives me a lot of Hmm. courage to just be. तो Hmm. मेरे लिए, मेरे को कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि ये मेरे को ये करना है, ऐसे 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 करना है, ऐसे मार्केट चलते हैं, ऐसे एल्गोरिदम चलता है, मेरे को वो सब कुछ नहीं है। मैं अपने अंदर की एक हार्ट की अलाइनमेंट में चल रहा हूँ, और वो हार्ट की अलाइनमेंट ने मेरे को अभी तक जिंदा रखा है। इट विल फाइंड अ वे फॉर मी टू सस्टेन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, एंड माय जॉब इज टू be true to that feeling within. Yeah. Yeah. So I'm always chasing or trying to connect with that feeling in everything that I'm doing. That's I'm so happy to hear these thoughts. I can't even tell you. But वो जो creative process होता है वो बहुत ही chaotic हो जाता है while you're chasing that specific feeling. तो उसमें कभी भी आपको ऐसा feel हुआ किसी भी गाने में कि वो specific feeling that I was chasing when I started work on this Gana has evolved through the process, So or I'll it tell stays? you, I'll tell you what, I'll tell you a very interesting thing, that I'm never chasing a particular feeling. Hmm. It's not like I have a set objective कि ये मेरे को चेस करना है, और मैं ये चेस करने के लिए, फिर वो तो आप मिराज चेस करते रहोगे। वो तो Hmm. कभी भी नहीं होगी कि अगर Okay. मैं ये चेस करूं कि मेरे को ये चेस करना है, तो मैं मिराज चेस करने के लिए नहीं आ रहा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि while I'm in the creative process, I'm trying to be completely in it, so that there is, you feel it when you feel it. It's like that. Let me tell Hmm. you, it's not like I am chasing some abstract idea of, Yeah, आप yeah. मैजिक को क्या चेस करोगे, आपको पता ही नहीं। अगर मैं ये बोलूं कि मैं वो तरह का मैजिक चेस कर रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं वो तरह का क्या होता है। वो तो मिराज हो गया। बट जब आ गया तो आपको पता चल गया कि ये Hmm. आ गया, और जब तक नहीं आया तो मेरा हार्ट बहुत क्लियरली बता देता है मेरे को कि अभी नहीं आ रहा। बस ये मैं कह सकता हूँ। Yeah, yeah. इट्स You know लाइक it दैट, when you feel it. You know it when you, yeah. इट्स लाइक दैट, it's not some abstract idea of magic that you're chasing. It's just there when you feel it. Chandra Bindu, I've heard you call it. या, है ना? या चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु। Nice. Okay, so उतना उतना पॉइंटेड ही एक्चुअली इट uh, इज। चंद्रबिंदु वर्ड में बहुत टाइम बाद सुना मैंने, शायद लास्ट ईयर किसी को बोला होगा, आपने पूरी रिसर्च करी है, हाँ। yes. बट चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु ही है मेरे दिमाग में। इट्स सो पॉइंटेड ना, Mm. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट इज सो जॉयस फॉर मी। Mm. बिकॉज मेरे को, आपने अगर फिलोसफी की बात बोली, आपने बोला कि सोल्स, आपने, अगर मैं थोड़ा और अपनी बात बोला, आपने बोला कि सो वी चूज आवर पेरेंट्स, right? So that means that you are saying that there is an entity that is existing before the body was born. That implies that, right? So let me take a step forward. Mm. I'm saying that if I believe that I have lived this life for so many times, मैं 10,000 बार ये जीवन जी चुका हूँ, अभी भी मैं वो Ah, अपनी चंद्र बिंदु ना चेस करूँ, तो फिर मेरा फायदा क्या हो इधर आने का? मेरे लिए तो वो है। मेरे okay. लिए अगर अगर मैं ये जो बॉडी का एक्सपीरियंस है, Hmm. मैं इतनी बार आके जी चुका हूँ,
Hmm. मैं इतने कॉम्बिनेशन में जी चुका हूँ। अब इस जन्म में आके भी मैंने बस टाइम पास करके वो बस वही बनाना है जो सबको चाहिए, और उसी रेस में फंस के मैं आ गया, तो फिर मेरे लिए कोई पॉइंट एवोल्यूशन नहीं नहीं है, है। हाँ। मेरे लिए नॉट मोटिवेटिंग इनफ। या द लाइफ टाइम इज द व्हीकल फॉर एवोल्यूशन, है ना? सो मे बी, मे बी, मे बी। love it. Okay, so you always say that आप किसी भी गाने का अपने मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, because then you're limiting its possibilities and its emotional reach, or you're diluting the magic. um, so I want to know, when you're writing the lines, it's kind of obvious to me, maybe I'm wrong, but you focus minutely on each and every word को stretch करना उसकी delivery में, या जल्दी बोलना and all of that. And what I really loved hearing you say in one of your interviews is, जो भी मैं कहना चाहूँ आबाद करे अल्फाज मेरे. So you're also a rare artist who is in love with his words rather than या feeling like they are या not sufficient, you know? या नो नो, Um, दैट वाज जस्ट लाइक, वो आबाद करे अल्फाज मेरे, वो कोई मेरे से 2-3 बार किसी ने पूछ लिया था रॉकस्टार का रेफरेंस कि अरे हाँ, क्योंकि वो कि आप तो हमें वो रॉकस्टार की याद दिला रहे हो, जॉर्डन वॉर्डन। मैंने बोला मैं तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट थॉट है मेरा। मैं नहीं मानता कि मैं अपने शब्दों से लड़ाई कर रहा हूँ, कि जो भी मैं कहना हाँ, चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। ऑल्दो आई लाइक द लिरिक्स ऑफ द होल एल्बम, इट yeah, नॉट, दिस इज नॉट अ क्रिटिक, बट आई एम सेइंग माय थॉट्स। yeah, तो मेरे लिए मैं कोई बर्बाद, मैं अपने शब्दों को नहीं, मैं अपने शब्दों से लड़ाई में हुई नहीं यार, मैं इश्क में हूँ। love मैं it. इश्क में हूँ यार, मैं अपने शब्दों से प्यार कर रहा हूँ, मेरे शब्द बह रहे हैं, मेरे को एफर्ट, जो आप बोल रहे हो ना कि एफर्ट लग रहा है और स्ट्रेच लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग हम्म, में। हम्म, मेरे दिमाग में फ्लो है। मेरे हम्म, दिमाग में वो बह रहे हैं, और जब वो बह रहे हैं तो वो अपने आप डिसाइड कर लेते हैं उनको कितना स्ट्रेच होना है, कितना टाइम पे रहना है। हम्म, इट्स व्हेन द फाइट हैपन देन, मतलब वो मेरे लिए, इट्स नेवर अबाउट दैट फाइट, इट्स अबाउट बीइंग इन अ स्टेट ऑफ फ्लो एंड बीइंग इन अ स्टेट ऑफ लव एंड विद एवरीथिंग, हम्म. सो द वर्ड्स आर इंक्लूडेड। हाँ। So for you, the truth is when they're flowing. That's when they're most या truthful, श्योर है ना? श्योर श्योर There's a श्योर। there's a writer who used to say that she would be working in the fields and she would just feel a poem coming and she would run back to the house and write it before it escaped. So has Yeah, something I like that get. ever happened to you? Always, always, Yeah. always, always, always. All the and so the good thing is that I have technically trained myself to. When I started out, I had no knowledge about music, but obviously I am cognizant enough to know that I want to be one of the very very good artists of this country, and I want to be technically very sound. So it's Hmm. not just कि बस कुछ भी बनाना है, तो पर मैंने अपनी क्राफ्ट पे काम किया है, तो now I am technically equipped enough to write maybe 20 songs in the next 2 hours, just like as a, Hmm. मतलब वो आई थिंक वो इज अ स्किल मोर देन It's the कि tools देखो you मैं, have. Yeah. द टूल्स, आपको पता है कि आप ये गिटार पे ऐसी कॉर्ड बजाओगे, आप कुछ चैनल करोगे, कुछ ना कुछ फ्लो होगा। Hmm. बट वो बनाने के लिए तो मैं गाने बहुत सारे बना सकता हूँ, और कई बार मैं ऐसे एक्सरसाइज करता भी हूँ, तो कई बार मेरे को लगता है यार ये गाना मैं डालूंगा तो ये तो मार्केट तोड़ देगा, पूरी हिट हो जाएगी। लेकिन वो उसमें अगर मेरे को फ्लो फील नहीं हो रहा, तो मेरे लिए वो उसको Honest नहीं है. फॉलो करना, उसको, क्योंकि क्योंकि बनाना का जो प्रोसेस है Hmm. वो बहुत आर्डुअस है मेरे लिए, बहुत ज्यादा Yeah. एक्सक्रूशिएटिंग पेन वाला प्रोसेस है। मतलब अगर, चलो अगर मैं 10 मिनट भी लगाता हूँ किसी गाने में, लेट्स अज्यूम कि मैंने सिर्फ बोला कि मैं लाइव रिकॉर्ड कर दूंगा उसको, Hmm. कुछ नहीं दिमाग लगाना, गाना आया, मे बी मैं शायद करूँ भी आगे कि ये आया, उस पर ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया, आपने एक रॉ बनाया, उसको एक दो बारी रिविजन्स करी, एंड यू रिकॉर्ड इट एंड यू पुट इट आउट, इवन देन इट इज नॉट एक्साइटिंग इनफ फॉर मी टू चेज जस्ट Go into the. दीज। या इट हैज टू हैव सर्टेन, वो सोर्स में कुछ तो मैजिक होना पड़ेगा मेरे लिए, या फ्लो होना पड़ेगा मेरे लिए उसको कंप्लीशन देने के लिए। Hmm. Interesting. Okay. So, you also talk about कि जब गाना मैं बना देता हूँ, by the way, you've done first verses का वो collection, या तो वो या ऐसे ही बनाया था, वो like ऐसे एक एक, वो तो वो वही वाला था जो मैं आपको बोल रहा, 10-10 मिनट पे डाल दिए, वो तो सुन उसकी। के I feel like, oh my God, so where is the next verse? या आई हैव रिटन द नेक्स्ट वर्सेस फॉर 2 of those songs, so I would put it out. Please So tell me but one of them is तुम. one of them is तुम। Favorite. Okay, lovely. But you are also तो someone जो आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके, जो एक्सक्रूशिएटिंग आप कह रहे हैं, वो फिर कंप्लीट करके आप डिटैच भी कर लेते हैं, बिकॉज आपने कहा है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं लेकिन नहीं भी हैं, बिल्कुल वो नहीं. पूरी लाइफ मेरी डुअलिटी पर चलती है। हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक इवन विद द करंट सॉन्ग, राइट, या. आई, देयर इज नो मतलब मैनिपुलेशन इन माय हार्ट टू से कि मेरे को, आई वांट इट टू रीच टू मोर पीपल।
राइट नाउ आई वांटेड टू रीच टू मोर पीपल एंड आई एम फोकस्ड एंड आई एम काइंड ऑफ फिगरिंग आउट कि वो कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उसके साथ साथ उसका जो भी हो उससे मेरे को वो नहीं है, मतलब वो दोनों रियलिटीज आर एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। ओके। हाउ टू एक्सप्लेन, नो, मतलब आई इट गेट इज इट। लाइक आपको अपना कर्म करना है जो भी गाने की मेरे को पूरा कर्म करना है, मेरे को हक अपना अदा पूरा करने के लिए। हार्ट देना है, मेरे को हाँ। पूरा अपनी अपनी तरफ से, मेरी तरफ से एक मिनिस्क्यूल कसर नहीं छूट सकती। मैं वो वाली एनर्जी नहीं है कि मैं बस बैठा हूं या फिर मैं बस बोल दूं कि ये जो होगा वो होगा, ऐसी इट्स नॉट अ ढीला हम्म। एनर्जी, इट्स फुल्ली फोकस्ड, रेजर या शार्प। या लेकिन I genuinely believe it's the destiny of the song या because I am trying to make living beings. मेरे अभी तक जितने गाने हैं ना, मेरे 4 गाने हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आई मैंने नो। इससे पहले निकाले 3 निकाले थे, तेरी ढूंढ और ढूंढता तुम, हूँ। हाँ। ढूंढता हूँ और मैं ये भी नहीं जानता, वो तीनों एक साथ। उसके बाद वो भी एक्चुअली ऐसे निकाला था कि मैंने एक एक मिनट ऐसे ही डाल दिए थे इंस्टाग्राम पे। लोग मेरे को मैसेज करते रहते थे कि हमें MP3 भेज दो, MP3 भेज दो, तो आई कंपाइल्ड देम टुगेदर एंड पुट इट आउट लाइक ए फर्स्ट वर्सेस। इट्स नॉट लाइक डिजाइन फर्स्ट वर्सेस, मैंने ओके। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे डाल दिए थे। तो मेरे को काफी मैसेजेस आते रहते थे, प्लीज कैन यू सेंड अस एन MP3, MP3। तो मैंने 4-5 लोगों को तो भेजी, फिर मेरे को लगा नहीं यार, इसको डाल ही देता हूँ मैं स्पॉटिफाई पे, तो वो वैसे किया था। बट ऑल माई सॉन्ग्स हम्म। have found an audience in interesting ways after some time. लाइक हम्म। तुम जो है वो 1-1.5 साल बाद किसी ने डाल दिया तो उससे चल गया। चोर भी जब आया था तो 1.5 महीने उस पर कोई स्ट्रीम नहीं थे, कुछ नहीं था। डेढ़ हम्म। महीने बाद अचानक से उस पर स्पार्क आ गया, वो चलना शुरू हो गया। तो मैं मेरा इसलिए मेरे को एफर्ट तो लगाना है, बट मेरा जो डीपर फीलिंग है वो ये है कि मैं अपनी तरफ से उन चीजों पे लिविंग एनर्जी डाल रहा हूँ। हम्म। मतलब मेरा काम है उस पर लाइफ डालना, अब उसके बाद उसकी जो डेस्टिनी होगी वो होगी, वो आई कांट कंट्रोल। तो वो इसलिए दोनों चीजें इक्वली ट्रू है। इट्स लाइक योर पेरेंट्स ना, हमने लाइफ डाल दी इस बच्चे में, अब उसकी डेस्टिनी बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल, हंड्रेड सेम वे, परसेंट दीज आर योर चिल्ड्रन। या या एटलीस्ट आई वाज इन्वॉल्व इन देयर क्रिएशन। या बट बहुत आर्टिस्ट बोलते हैं कि अब गाना आपका हो गया रिलीज के बाद एंड नाउ आई डिटैच फ्रॉम इट, बट कहीं ना कहीं वो सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट रहता है, व्हिच आई एम हैप्पी टू हियर यू से कि आई विल डू माय कर्म टू हेल्प द सॉन्ग रियलाइज इट्स डेस्टिनी, बट देन इट्स द डेस्टिनी ऑफ द सॉन्ग व्हाटएवर हैपेंस टू इट। सो या you don't, maybe I'm wrong, but you don't think of success in the standard metrics for anything you create. There's no defined metric for you, or is there? And what is it? नो आई डू एंड आई डोंट, आई डू एंड आई डोंट, सो अगेन इट्स अ डुअलिटी अगेन। Mm. आई टेल यू आई हैव अ वेरी क्लियर इंटेंशन ऑफ बीइंग लाइक, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी पैदा हो रहा हूँ, अभी तो मेरे पहला 1-2 पत्ते निकले हैं। अभी तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ यार, I अभी तो have पार्टी that feeling also about शुरू you. हुई है। हाँ. I have that feel. I've had this. I'm very, मतलब at the verge of sounding cocky or arrogant or whatever, but I've had that feeling ever since the day I decided to be a musician without even knowing a single strum. That is Mm. the feeling that is carrying me on, and I know that if I am true to that, जो मैं आपको बोला है ना कि अपने हार्ट के साथ ट्रू हो, तो Yes. उसके बाद वो दुनिया का काम है यार। दुनिया देखो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, उसने मेरे को पैदा कर दिया है। तो मेरा गाना तो पहुंचाना, मेरी जिंदगी बनाना तो वो यूनिवर्स का काम है ना। मेरे को एफर्ट लगाना है, बट वो उतना ही कर सकता हूँ मैं। वो Mm. रास्ते यूनिवर्स ढूंढेगा, वो ढूंढ ही देगा, क्योंकि मैं आ गया हूँ और मेरे Yeah. अंदर अभी बहुत कुछ है एक्सप्रेस करने के लिए। और मेरा रोल है इधर। Yeah. अगर वो रोल नहीं होता तो मेरे लिए इतना, अगर मेरे, मैं आपको एक और, क्योंकि मैं बहुत टाइम ये सब सोचते रहता हूँ और अपने साथ बिताता हूँ, Mm. बट अगर मेरे को अपना रोल नहीं लगता ना, कि मेरा रोल है इधर एक यूनिवर्स के प्रति या फिर एक वॉट एवर, देर इज लाइक इट्स मोर, इट्स अ वेरी आइडेंटिटी लेवल थिंग। इट्स लाइक कि मेरा ये धर्म है, ये Yes. मेरा ना धर्म है जो मेरे को कर रहा हूँ मैं म्यूजिक। इट्स लाइक व्हाई आई कम टू दिस प्लेनेट, सो आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू डू इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक money, fame, all these things are not motivating enough for me. I'm being very serious. Like, it's not like I am against any of these things. Everything is welcome, but मेरे लिए कोई motivation नहीं है उसकी, कि वो और वो। मैंने इतनी डॉक्यूमेंट्री और इतने लोगों को, मैं क्योंकि बॉलीवुड में भी काम किया, तो आई interacted with some of the biggest stars out there and had like good one-on-one with them, अच्छा लंबे लंबे टाइम तक। Mm. मेरे लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है उस चीज की कि अरे अरे वो मेरे को जाना है। अगर वो Mm. होता तो वो मैं इतनी डॉक्यूमेंट्री देख चुका हूँ कि मेरे को पता है वो कितना पेनफुल प्रोसेस अपने आप में है, वो पूरा फेम और उस चीज का चैप्टर। वो मैं, इट्स मोर लाइक अ आइडेंटिटी लेवल ड्यूटी, कि मेरा ये धर्म है, ये मेरे को करना ही पड़ेगा इस जन्म में, या फिर मेरे को ये करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। वरना तो मेरे लिए कोई
कोई मोटिवेशन नहीं यार, क्यों मैं मेहनत करके इतनी चेज करके गाना बनाऊं सिर्फ 2 करोड़ रुपए कमाने के लिए, 10 करोड़ कमाने के लिए? मेरे लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। मतलब इट साउंड्स वेरी अजीब सा, लेकिन दैट इज माई ट्रूथ। मेरे लिए कोई मोटिवेशन नहीं है उस चीज की। मेरे लिए मोटिवेशन ये है कि ये मेरे को करना है और ये मेरी ड्यूटी है। और या हम्म, मेरे को, और वो मेरे को ड्यूटी दिख गई ना उस टाइम पर, वो एपिफेनी या फिर उस मोमेंट में मेरे को अपनी हाँ, ड्यूटी दिख गई। और हम्म, वो मेरे पास, इट्स लाइक अ बॉन्ड, इट्स लाइक a sacred bond that you have with your soul, that you हम्म, have to do it. There is no हम्म, other option. There is that no other is, option. So हम्म, when there is no other option, then I have to sustain this path and I have to, अब ये गाना सुपर चले नहीं चले मुझे नहीं पता, इसके बाद कोई और चल जाएगा, फट जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा। अभी तो मैं तो शुरू हुआ क्योंकि मेरी ड्यूटी है, और ये मेरी ड्यूटी है, तो यूनिवर्स ही गाइड करेगा उसका तरीका कि हाउ इट रीचेस आउट एंड थिंग लाइक दैट। सो yeah, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर ट्रू, कि मैं कॉन्शियस लेवल पर तो डेफिनेटली देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ कि कितना नंबर्स आए या फिर कितने लोगों तक पहुंचे, लेकिन मैं बिल्कुल भी उस पर अपने आप को इफेक्ट नहीं होने दे रहा। क्योंकि क्योंकि मेरे को पता है कि ये मेरे को ये करना ही है। हम्म, अगर इसमें 10 व्यूज भी आए गाने में, हम्म, हम्म, या फिर अगर इसमें 100 मिलियन आ जाए, 500 मिलियन आ जाए, ये पूरे वर्ल्ड का बेस्ट सबसे बड़ा गाना बन जाए, मेरे को तब भी ये करना ही है, क्योंकि मेरे को ये करना है। हम्म, ये तो मेरे को करना ही है ना, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो yeah. इट्स लाइक दैट। I love that you said it's a sacred bond with my soul. या It's like I and I feel that you're someone who's very self-aware because आपने बिताया वो time अपने साथ and you have those um, desires to understand yourself better before you go out into the world and do what your dharma may or हंड्रेड may परसेंट not हंड्रेड be. परसेंट 100%, So लाइक that इवन hmm, इवन आफ्टर चोर, राइट? yeah, चोर became a success and I hmm, always knew that it would. yeah. मतलब You said before. I've always known that about myself. Again, वो अब time would tell whether I'm right or wrong, but I've always had this feeling कि ये लोगों तक पहुंचेगी चीज मेरी, या कहीं ना कहीं तरह से, क्योंकि मैं वो डीपर फीलिंग से आ रहा हूँ, मेरे अंदर ट्रूथ है जो मैं चीज कर रहा हूँ। तो जब चोर चला ना, तो पूरी की इट मेड नो सेंस एट ऑल टू कम विद द नेक्स्ट सॉन्ग आफ्टर 1.5 years ऑफ दैट, राइट? कोई, जितनी आज की डेट में जो आप मेरा इंस्टाग्राम पे भी जाओगे, तो मेरा जो लास्ट पोस्ट है बिफोर आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन, मुझसे जाके कह दो, वाज इन अप्रैल 2024। मैंने सवा Hmm, साल कुछ पोस्ट ही नहीं किया, मैं गायब हो गया। तो that's कोई not. कोई कोई सेंस नहीं है ना उस चीज का। मतलब Hmm, जो yeah. एल्गोरिदम, मार्केट कैपिटलाइज ऑन सक्सेस, लूज द वायरलिटी, लूज द मोमेंटम, वो सारी जो, और ऑब्वियसली हर किसी ने मेरे को बताया रोज अपॉर्चुनिटीज, बट मेरे लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वाज अंडरस्टैंडिंग फेम फॉर द फर्स्ट टाइम। आई वाज Hmm, अंडरस्टैंडिंग मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं तो पिछले 8-9 साल ऑलमोस्ट बहुत कम पैसों में जिया हूँ। फेम पहली बार थोड़ी सी आई, ऐसा नहीं है कि मैं जा रहा हूँ सड़क पे लोग गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक टेक्सचर ऑफ फेम तो मैंने yeah, फील किया ही। yeah, मतलब मैंने खिंचवा दी वो 1000 सेल्फीज, तो मेरे को एक टेक्सचर ऑफ फेम तो मैंने yeah, फील किया ही, मे बी इन स्मॉल बाउट्स। yeah. तो it had a certain texture and I am very aware about what I'm feeling. So I was like, Hmm, hey, these things are new experience for me and it feels a different thing than what I was anticipating it to be. Like it, मेरे को कोई बहुत ज्यादा ऐसा डांस नहीं हो रहा कि यार ये मैं इस, अगर मेरे को कोई भी चीज, hmm. लेट्स अज्यूम मैं बोलता हूँ कि मेरे को बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, और तो उसकी मैं मैथ्स बताता हूँ यार, बहुत मैथ्स और सीए वाला दिमाग मेरे चलते रहता है। बताइए. मैं बोलता मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे को बहुत ज्यादा बड़ा आर्टिस्ट बनना है, लेट्स अज्यूम दैट इज माय डिजायर, लाइक आई Hmm, वांट टू बी द बिगेस्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस प्लेनेट, लेट्स hmm. अज्यूम दैट, Okay. लेट्स अज्यूम दैट्स माय डिजायर, लेट्स Hmm. अज्यूम फॉर Okay. फॉर फॉर लाइक डिस्कशन सेक। Okay. ठीक है, दैट इफेक्टिवली मीन्स दैट इफ आई हैव x amount of fame and x amount of money that I am getting from Chore, that would be maybe 1000x of that, the fame, the Hmm. money, or Yeah. 100x of 500x of that. Hmm. So if I am not fully aligned with the x that I am receiving, I cannot blindly go and chase 500x. Hmm. तो मेरे को पहले x को अपने साथ अलाइन करना था कि x है क्या। ये जो Hmm. फेम का 1% है, जो 1 नॉच है, जो 1 यूनिट है, हाँ. उसके साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं हूँ। और Hmm. मैं एकदम, मेरे लिए वो नया आउट था, तो मैं Hmm. उसके साथ 1 साल तो मैंने अपने साथ टाइम लगाया कि मैं क्या हूँ, और मेरे को ये अगर चैप्टर्स है, और अगर मैं आगे और जाता हूँ Hmm. तो नेचुरल है, और मैं अगर और जाता हूँ और मेरा गाना और लोगों तक पहुंचता है, तो ये काफी नेचुरल है कि लोगों तक ये सब चीजें बढ़ेंगी ना। अगर अगर मैं और बड़ा होता हूँ और मेरे गाने और लोगों तक पहुंचते हैं, तो ये तो उसका साइड रिजल्ट है। Yeah. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं वो
चीज को बहुत डीपली समझूं, इसलिए मैंने 6 महीने तो बस उस फीलिंग को समझने में लगा दिया। ऐसे नहीं लगाया कि मैं सोच रहा हूँ। इट्स लाइक एन एवोल्यूशन प्रोसेस, आप कुछ कर रहे Yeah. हो, गाने भी बना रहे हो, आप घूम रहे हो, बट subconsciously you are also figuring those things out. So I took a long time to kind of get comfortable and get my own relationship with these things. So now if the journey has to take me 0.5x of those things, then that's fine. It has to take 1000x of that thing, then that's fine. So that's been where I'm at. That's I've never heard someone go through this kind of a process in between songs, in between releases. So I'm gonna repeat myself. I think by the time this podcast ends, you'll get sick of hearing this, नहीं but नहीं it's नहीं, so आप refreshing. we Uh, can go for 90 minutes अगर आपको करना है. I'm having a good Amazing, time. amazing. हाँ. So, what I love, and I wanted to specifically highlight this again, is the use of pauses in your song, because उनमें बहुत सारे listeners के लिए connection points hidden होते हैं, and वहीं पे हम हमारी stories के बारे में सोच के, उस song को अपना बना लेते हैं. And you also, like you said, you talked a lot about अभी the pause between चोर and उनसे जाके कह दो. So, I feel that you're coming across as someone who also feels that pauses is where the life is, sort of the magic in life is hidden, and that's why we see a lot of that in your song structures also. Am I onto something? You are onto something, although I've never really thought about it, but I'm thinking about it right now, and maybe there is some resonance, although I can't guarantee that हर गाने में pause होगा. But I'm still saying कि maybe there is truth to it, because मैं तो मानता हूँ कि मैजिक जो है वो सांस जब अंदर जाती है और बाहर जाती है उसके मोमेंट में कुछ तो है. तो फिर Hmm. वहां पर कुछ तो मैजिक है ही. हाँ. In the pauses there is magic, there is the entire cosmos that exists. Maybe Correct. maybe there is something to it. I've never like intellectually thought about it like that, to be very honest. Maybe it is a deeper thing. Maybe I do believe in those things. I do chase pauses के अंदर वो मतलब chase भी नहीं है. It's something that there is, Experience right? them. Yeah. हाँ, experience them. तो maybe there is something to it. Okay, maybe it is the person that I am, the Hmm. melodies that are created through me are a result of the person that I am. And Hmm. again, so maybe the pauses are a result of that, but it's not a manufactured reality. It's not an intellectual effort. Right. No, the reason I'm saying this is because I saw a reel of yours. आप कहीं पे, I think you had written in the caption that मैं निकल गया इस गाने के बाद, and you were sitting with three people and playing your Yeah, song on the harmonium, yeah, and that was yeah, so heartwarming, and it was just so real. So I feel like this kind of slowing down also helps you preserve the truth in your music, because you're living a very real life beyond all of this. yeah. Maybe there is truth to it. But हाँ, जैसे ये चोर के बाद जब वो जगह उत्तरकाशी है, तो उत्तरकाशी में मैं हाँ. चला गया था 1 महीना, और वहां पर एक छोटा सा कोई आश्रम टाइप है, और वहां पर ऐसे एक कमरे में वो रात को कीर्तन टाइप करते हैं. तो फिर मैं भी बैठ गया So था, तो उधर cool. वो ऐसी जगह थी. तो ऐसे हाँ, जो जब मन कर रहा है तब कर रहे हैं, ऐसा कुछ वो So नहीं. much joy in those moments, right? So या 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 yeah. या So now let's come to Unse Jaake Keh Do. We've या arrived here. राइट It's a universe of emotions, is how I would राइट like to describe it, because har ek line, राइट my God, from the first line, I was like, I heard that first line and internal dialogue, I was like, oh no, ye aisa reaction hoga where I will cry. I just knew it राइट. in that moment कि ये कुछ वाह special होने वाला है. And वाह. I know which, in 5 years on YouTube, I know which songs have hit me and they stay with me for good. So this was one of them. But I feel like um, इसका जो narrative arc था गाने का, it started with someone who's holding on to the past and something that's over and done and dead, and it eventually takes you to a place of freedom, which is also what Chor sort of did. आपका end वाला pose भी same था दोनों videos में. राइट. So I feel like, is that your feeling, the freedom, the space of being free, that you're sort of directing the art towards? Maybe because there is something about why I'm coming to do music has to do with that also. Hmm. like Hmm. like it's a deeper, so you might see that as a theme in my music, Yes. and you might not. Okay. But I'm saying but for me it is not. Again, everything is very organic. Like Right. it's not कि ये जाके मेरे को हाथ खोलने हैं वो. I felt like that in the moment, and it happened. It's like Right. that. But
बट वो ये जरूर है मेरे साथ कि वो जो आप फ्रीडम या फिर आप जो आजादी या फिर उस टाइप की जो आप बात बोल रहे हो, तो वो तो है क्योंकि क्योंकि मेरे लिए पर्सनली Hmm. म्यूजिक के थ्रू भी जो मैं मैजिक या फिर जो भी बोल रहा हूँ, मैजिक मेरी चीज़ है मेरे लिए। लाइक Hmm. बिकॉज जहाँ पे मैजिक है वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, वहां पे Hmm. इट्स अ स्पेस बियॉन्ड टाइम एंड it's something beyond time, it's something beyond space. Yeah. So when something is beyond time and space, then that is absolute free. तो freedom हो सकता है आपको feel हो, and if you feel that, तो maybe there is some sort of truth to it. So I won't deny that. However, I'll say that जो आर्ट की आप बात कर रहे हो ना, so one of the reasons why my music might sound very different to some of the music out there is that I've had experiences as a filmmaker. Hmm. And before music, I was playwriting, or I was doing writing. I was writing scripts. I was dabbling in that. So for me, every song that I write, for me, it's a three-act structure on a logical level. Right. इट्स नॉट जस्ट कि वर्स और कोरस में ये वर्स हो गया और ये कोरस के 8 बीस और ये प्री कोरस की 2 बार्स है, फिर कोरस के 4 बार्स है, और फिर ये इतना ब्रिज डाल दिया। और वो जो टेक्निकली है, वो जब मेरा मन करता है तो मैं वो स्ट्रक्चर फॉलो कर लेता हूँ या नहीं करता, वो जो डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग। Right. पर जो दो इंडियन म्यूजिक में है कि मोखड़ा आ गया फिर अंतरा Hmm. आ गया, अंडरस्टैंड मैं कर लेता हूँ कभी कभी फॉलो जब मेरा मन करता है। लेकिन उससे ज्यादा जो irrespective of whether it follows a certain musical structure or not, every song for me follows a structure for sure, technically speaking. Like even if it does not follow a conventional structure of what a song might sound, in my head, everything has a structure. Hmm. But there is also a deeper narrative structure. It is not just कि ये वर्स कोरस में अब बस आपने 4 बार कोरस को लाइन रिपीट कर दिया और वो दिमाग में फट 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 डाल दिया और वो हो गया। वो मेरे लिए एक फिल्म है हर चीज। मेरे हाँ, लिए एक पूरी स्क्रीन प्ले है। लाइक स्टोरी है। in the in the lyrical structure, in the lyrical pattern there is a three-act structure. It can be a three-act structure, it cannot be, matlab, but there has to be some payoff. For me also, I am excited by the technicalities of telling a story because I have always been a storyteller. Hmm. Ever since I was a kid, तो मेरे लिए कहानियां बहुत excite करती है। तो मेरे Yeah. लिए even if it's an expression, it has to have some sort of a narrative arc to it. तो Yeah. वो भी है, वो भी जो आप आर्क बोल रहे हो, तो वो उसमें देयर इज कॉन्शियस थॉट अबाउट दैट एज कि कहाँ पर जो गाना है वो यहाँ से वो कहाँ जाता है। Right. आप फर्स्ट फर्स्ट एक्ट में उसको ये इमोशन फील हो रहा हो, तो वो म्यूजिक भी फॉलो करता है। जब इंटरल्यूड में जिस तरह से गिटार आ रहे हैं वो कुछ बोल नहीं रहा, नहीं उसमें कौन से ईपीस किस लेवल पर आ रहे हैं और कहाँ पे वायलिन आना है और कितना गाने को बड़ा करना है और उसके बाद कहाँ पे उसको छोड़ देना है, वो सब एक तरह का नैरेटिव आर्क भी फॉलो कर रहा है मेरे लिए ऑन Yeah. अ सबकॉन्शियस लेवल, Yeah. लिरिकली एंड स्ट्रक्चर वाइज, प्रोडक्शन वाइज। It's so cool to me because you said that you have, when I reacted and I didn't know much about you then, I was like, he's definitely got a theater or some, that kind of creative field ka background, because even your expressions to the camera, like when you're looking straight at the camera, it feels like you're looking into our souls, let me tell you. And the way you sort of Right. frame every frame and show every little thing, it adds to the emotion of what you're hearing. Right. So all those nuances are very obvious. And before you even realize you wanted to be a musician, I feel like the universe was already um, making sure it had given you the other tools you would need in your journey as a I musician. completely agree to that because आई फील वो जो स्टीव जॉब्स की एक वो है ना, एक वो स्पीच है शायद स्टैनफोर्ड की या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी की उसकी स्पीच है, उसमें अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स वाली एक बात Hmm. ही सेड। तो आई फील माय बिगेस्ट सुपर पावर is the fact that I had no idea about music till I became a musician. Yeah, That is the I see. biggest superpower that I have because I think of it very differently. I Yeah. think of it as an experience more than like a verse, chorus, or a melodic structure, or a minor chord, or a minor seventh here, and things like that. That are just embellishments that I add later. But Hmm. for me, it's an experience, and और पूरी चीज वो theater, films, or watching films and watching art. I've always been fascinated by great painters. Yes. कि आप राजा रवि वर्मा की पेंटिंग को घूर रहे हो एक आधा घंटा, या फिर आप किसी उस टाइप की जो एक्सपीरियंस आपको Yeah. दे रहा है, तो मेरे लिए हमेशा वो जो एक्सपीरियंस है ना,
वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर म्यूजिक उस जरिया है उस एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करने का। तो फॉर मी इट्स बीन द बिगेस्ट ब्लेसिंग कि आई केम थ्रू दोज डिफरेंट एक्सपीरियंसेस व्हाइल फुली बीइंग इन इट। मतलब मेरे लिए कोई भी चीज करने की कोई ऐसा एक्साइटमेंट ऐसे हुई नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को एज ए सिंगर सॉन्ग राइटर देख ही नहीं रहा। Hmm. एक होता है ना कि आप आइडेंटिटी लेवल पर सबसे Oh, पहले तो wow. आपकी Yeah. आपकी सबकी आइडेंटिटी क्या है। आप कोई बोले कि मैं सिंगर हूँ या फिर मैं सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ, दैट्स एन आइडेंटिटी लेवल क्वेश्चन, राइट? इफ Yeah. दैट इज माई आइडेंटिटी देन आई हैव टू डू एवरीथिंग इन माई कैपेसिटी टू बी द बिगेस्ट सिंगर सॉन्ग राइटर, टू बी द बेस्ट देयर। बट दैट इज नॉट माई आइडेंटिटी द वे आई सी माई सेल्फ। For me, it is this human being who is experiencing things and who wants people to experience what he is experiencing, and make sure that that experience is something that excites this individual. That is how I see myself. Right. And that vehicle right now is music. So Hmm. I am expressing through that. So मेरे लिए it's all the experience. Love it. You're saying that my biggest strength is that I didn't know anything about music when I decided to become a musician. People would think of that as a weakness, but you are like, नहीं, strength है मेरी और नहीं, यही. बट वो है, वो हाँ. मैं अपने आप को कोई Love सेल्फ it. पॉजिटिव टॉक नहीं कर रहा है, वो है, दैट इज द Yeah. ट्रूथ। Yeah. बिकॉज वो वो तभी आपको शायद मेरे गाने अलग भी लग रहे हैं। Honest लग रहे हैं. Yeah. Yeah. कुछ तो अलग लग रहा है लोगों को, या फिर हाँ. आपको मेलोडिक लेवल पे कल रात आया मेरे घर एक चोर, मतलब उसका कुछ कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है ना। Yeah. मतलब अब मैं अब जो बोल रहा हूँ कि ताकि उनकी यादें दिल, अब ताकि वर्ड मेलोडिकली हाँ. का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। आप अगर वो मेलोडिक स्ट्रक्चर है, बात करो, हाँ बात करता हूं मैं अब ना उनके बारे में, ताकि उनकी, मतलब देर इज, हम्म. आई कांट फाइंड अ सिंगल reference point to that. It is Yeah. coming without a reference point, Mm. like melodically also. On a Yeah. technical level, there is no reference point to that structure. Mm. It is, I am brave enough to follow those structures because for me it's this experience. If Mm. I saw myself limited to the foundations of music or the foundations of say a 4x4, और ये आपको ऐसे करना है वर्स की चीज कि वो चिपकती है, Yeah. वो जो जितने रूल्स हैं वो Yeah. रूल मैंने पढ़ लिए, क्योंकि मैं उतना, मेरे को आई वांट टू बी गुड एट इट, सो आई एम अवेयर ऑफ दोज रूल्स। बट आप अगर अपने आप को उस स्ट्रक्चर और उस रूल्स के हिसाब से फॉलो करोगे तो आई वुड नेवर फॉलो और क्रिएट मेलोडीज लाइक दैट। और वर्ड Mm. ताकि कौन वर्ड यूज करता है, मतलब इट इज सच, वो वैसे वाली Weird. चीज है ना। Yeah. Yeah. वियर्ड है कि ये क्या बोल रहा है और ये क्या हाँ. स्ट्रक्चर है। वो थोड़ा हो सकता है कई लोगों को पुश बैक भी करे कि यार ये क्या हो रहा है। बट Mm. मेरे लिए इट्स दिस एक्सपीरियंस, एंड आई एम brave enough to follow those experiences because I am Love it. chasing experience. Though they say na ki learn the rules, master the rules, and then break the rules. If you don't break Yeah, them, then how are you going to be different? yeah, So, yeah. I also heard कि आप ये हाँ जो word है ये हाँ। कुछ भी करेक्ट हो जाता था स्टूडियो में तो आप हाँ गा देते थे. मैं So वो, हाँ उसका वो था काफी उसका, आदि के साथ. हाँ हाँ हाँ. उसके साथ बहुत टाइम लगाया मैंने, लाइक वो Love. hats off to everybody who's worked on this song with me because it's not been easy for them also, क्योंकि Uh, it वो sounds like. well, it's been easy, I'm sure it's been joyous for them, but it's not been easy in the sense कि ये हमने बना दिया और ये हो गया, वैसे बना। हाँ मतलब there's been so much of this thing. He told me vocal mixing में 4 decimal places, which I found amazing. He's like no Yeah, 0.6458 उसके लिए कोई yeah, प्लगइन भी नहीं था और हमने डाउनलोड करवाया और yeah, हम 4 yeah. डेसिमल प्लेसेस तक गए क्योंकि या वो लॉजिक चाहिए था. लॉजिक पे एक ही डेसिमल प्लेस होता है, 6.1 या 6.2 या फिर इस टाइप का। और मेरे आधे से ज्यादा स्टेम्स पे 6 पॉइंट, और उसमें भी मैं 6 करना पड़ा। और वो आप उसको मैडनेस बोल रहे हो फिर जो भी कर लो, बट मेरे को कुछ तो फील हो रहा है, इतना सा बहुत डॉट जितना, मतलब वो, मतलब डस्ट पार्टिकल से भी कम डिफरेंस फील है उसका। लेकिन हाँ. वो है, इट्स नॉट लाइक कि वो नहीं है। चाहे वो, और वो क्योंकि मैं इतना घुसा हुआ हूं ना इस प्रोसेस में, हम्म. इतना तो मेरे को तो डेफिनेटली फील हो रहा है वो डिफरेंस। और वो सिर्फ प्लेसिबो नहीं है, या मतलब इट इज नॉट प्लेसिबो, मतलब somebody सो else might, स्पेसिफिक यू आर. या तो वो है, लेकिन वो वही मेरे लिए जॉय है, लव वो इट. ढूंढना। जॉय है लाइक या इसका टॉर्चर इसका इसका है. इसका आप वो भी देखो, अगर इसका जो है, इसका जो टेम्पो है हाँ. of this song, like the BPM of the song, या uh, it's normally
अ सिंगल नंबर ऑलवेज, आप जाके किसी देख लो किसी भी गाने का, द बीपीएम इज ऑलवेज 100, 102, 103, 104 जो राइट। तो Yeah. इस गाने का 105.7। Oh, तो लाइक द बीपीएम 7. 0.7, वो आई डोंट नो कि कोई आपको गाना मिलेगा शायद जिसका बीपीएम ऐसे डेसिबल में होगा, क्योंकि या 105 होगा या 106 होगा, पर इसका बीपीएम भी 105.7 है। और ये कुछ मैं ऐसे नहीं कर रहा कि मैं बस दिखाने के लिए, इट इज व्हाट तो इट पॉइंट इज, सेवन में छुपा था मैजिक। पता नहीं जो भी है, आप फील, मैजिक या नहीं मैजिक, आप फील करो इंस्टिंक्टिवली कि यार ये मेरे को सही साउंड कर रहा है, एंड यू फॉलो योर इंस्टिंक्ट Yeah. एंड यू ट्रस्ट दैट दैट इंस्टिंक्ट माइट लीड टू सम मैजिक, इट्स लाइक दैट। Okay. Nice. वो बहुत actually song का final sound, it sounds like a minimalistic sort of sound, but then when I was talking to Adi and I saw his reels also, जैसे उसने vocal layers करे हैं, एक layer cheerful है, एक dissonant है, तो उसमें फिर bitter sweet feeling वैसे आ रही है, फिर आप orchestra का 5 different instruments उसमें डाल रहे हैं on top of the guitar and the ukulele, so it sounds like a simple minimalist sort of song, but it's या not, and the details या are so profound. I love या that. या नो बट I'll make, matlab, if you go through the project, right, like Mm. the project, it has a lot of elements, like कम से कम इसमें 150 लेयर्स से ज्यादा है गाने में। Oh, और वो लगता, एंड वी हैव मेड इट साउंड लाइक इट्स अ 5 लेयर साउंड, मतलब, बट वो एंड इट्स बाय डिजाइन आल्सो, मतलब मैं अगर वो 150 लेयर चाहता तो आई कुड हैव मेड इट साउंड वेरी, I had all the masala, and almost everything is recorded, live recorded in the song. But वो nice. उसका जो साउंड है वो आपको इतना बड़ा मैं स्केप दे सकता था, लेकिन वो ये है कि वो प्लेइंग विद द माइंड है, आपको पता नहीं आपको क्या होल्ड कर रहा है, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते कि आपको सुनना ही पड़ेगा, मतलब इट्स लाइक दैट। Yeah. तो काफी लेयर्स है इसमें, बहुत, जैसे गिटार भी कम से कम 6 लेयर्स ऑफ गिटार बन रहे हैं, इतने इतने, वही जो पॉइंट डेसिबल है ना, -22 की डेसिबल पे प्ले हो रहा है, और वो कभी सुनाई नहीं Oh, सकता आपको, ऐसे 4 गिटार्स के लेयर है, लेकिन वो आपको लगेगा एक चीज, लेकिन हाँ, उससे कुछ हो रहा है, उससे आपका हेड वॉप हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है कि आप मूवमेंट नहीं रोक पा रहे उस सटल चीज से, तो वो सब तो काफी कुछ है इस गाने में एज एलिमेंट्स। बहुत ही सबकॉन्शियस ट्रिगरिंग चल रही है, हाँ, ऑडियो हंड्रेड में भी परसेंट और वीडियो में भी एक्चुअली। Let's talk about the video. Prince Shah has directed it and team, है या ना? या How did you and him decide how we're gonna reflect the rhythm in the pacing, the visuals? बहुत ही स्लो, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, लगता है कुछ नहीं हो रहा है, स्टिल इमेज है. So how did you decide on the pace? ए आई डिड लाइक चोर ऑल्सो, प्रिंस एंड आई डिड टुगेदर। Right. तो प्रिंस एंड आई हैव हैड, वी नोन ईच अदर, जब मैं फिल्म मेकिंग कर रहा तो वी got acquainted through a common friend, and then we decided to work together on Chore. And Nice. with him, the great thing with Prince is that he is very collaborative. Like, he's a great technician, he's superb at what he does, and beyond that he is like a very good human being. So वो, Mm. क्योंकि like he is very open to receive ideas, क्योंकि मैं I am also very particular, like with the video I was always have a very strong visual feeling, क्योंकि मैं भी विजुअल उससे आया हूँ, तो प्रिंस के साथ मैंने विजुअली बहुत ज्यादा, we took almost 6 months just cracking the idea of this song, the video. Really? Six Yeah, months? 6 months, 6 months. Love it. Not like 6 months कि आप रोज 6 months यही कर रहे हो, but he might have, we might have rejected like 12 or 15 ideas. Yeah. मतलब इसको इजीली मैं, वो कोई बना सकता है ना कि कोई लड़की आई है कॉफी शॉप में और वो हम मिल रहे हैं और ब्रेकअप, ऐसा कुछ इजीली हो सकता था, वो तो बहुत इजी एग्जीक्यूट करना उस टाइप का कुछ, या फिर Yeah. उसको भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके आगे पीछे थ्री, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का थोड़ा टैरेंटिनो स्टाइल कुछ करके आप कुछ बना सकते थे उसको भी इंटरेस्टिंग करने के लिए। Yeah. लेकिन वो अगेन वो wasn't sitting right with me, Mm. तो we were always chasing कि क्या करें, and the interesting thing, like I told you, right, for me everything is like this feeling that the universe has to eventually guide. Mm. I'll tell you an example of how वीडियो वाइज, Mm. मैं आपको बता दूं चोर कैसे हुआ फिर ये कैसे हुआ, तो हाँ. आपको एक लगेगा कि ये दोनों डुअलिटी कैसे एग्जिस्ट करती है। तो चोर में ना मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, बट आई हैड लाइक लिटरली 4,000 रुपीज इन माई पॉकेट at that Mm. time, and I had almost completed the production and the mix of the song, मतलब तो mix was at the last stages. Yeah. तो
आई वाज लाइक यार मेरे को वीडियो हमेशा से अच्छी बनाने का मन है, क्योंकि मैं अपने आप को विजुअली, फिल्म मेकर वाले विजुअल एक सर्टेन, लाइक विद हाउ आई ग्रो again to cut, but I want this song to work more also. Yeah. Reason is It's because a whole vision, complete I have vision. a certain canvas of what I want Yeah. to draw in my future songs. It Ah. won't be anything that you've seen ever in the Okay. world. That is the kind of things that I want to do. But for that, obviously, resources are involved and things like that. Yeah. तो that is also one of the reasons मेरा दिल चाहता है कि यार ये गाना लोगों तक पहुंचे, उनसे जाके कह दो, क्योंकि चोर help me make increase my canvas to in this song. So I want to increase my canvas, but then everything is up to nature. हाँ, तो coming back to चोर, चोर में मेरा पैसे नहीं थे, तो मेरा a friend of mine, a cousin, Pushkar, who also helped me with the recording, etc. Pushkar Batra, he told me कि यार मैं ना जिब्बी जा रहा हूँ, जिब्बी है मनाली के ऊपर, तो Hmm. आप आ जाओ, हमारे पास कैमरा है, हम ना कुछ भी रिकॉर्ड कर लेते हो। मेरा मन नहीं था, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। मैंने बोला यार चलो अब ठीक है, अब नेचर की मर्जी है तो फिर चलता हूँ मैं। Hmm. ठीक है, तो Hmm. मैं एक दिन पहले अपनी फैमिली और दोस्तों दोस्तों के साथ, ही वाज एनीवेज गोइंग देयर फॉर अ कैंप और समथिंग, एंड ही इज लाइक आई विल टेक माय कैमरा एंड वी विल शूट समथिंग हाँ. इन योर सॉन्ग, कि वहां पर ही क्योंकि अच्छी पहाड़ है, सुंदर है, तो वहां पे शूट करने का कुछ मिल जाएगा। हाँ. मेरा मन था नहीं, बट मैंने बोला अब ठीक है, अब नेचर की यही मर्जी है तो ठीक है, अब पैसे ही नहीं है, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। तो फिर मैं गया, और मैं ना जा रहा था वॉल्वो लेके, 15 घंटे की बस राइड थी। आफ्टर 12 आवर्स राइट, मैं मंडी के पास पहुंचा था। मंडी एक, वो 2 घंटे दूर था शायद जहाँ पे मैं पहुंचना था, 14 आवर्स जर्नी, तो 12 आवर स्पेंट ऑन द बस, एंड रोड फट गई। 1.5 साल पहले आपने न्यूज में देखा होगा, वर्स्ट फ्लड्स इन हिमाचल एंड ये हाँ. सब, Right. वो व्हाट्सएप आ रहे थे, पूरे गांव के गांव Hmm. Oh. थे, वो हाँ. सब। पूरा जो हाईवे है, वो हाईवे टूट गया। हाईवे टूट गया, 60 साल में वर्स्ट हाईवे, लाइक इट, हाईवे खत्म हो गया। देयर वाज नो चांस टू फॉर मी टू रीच। आई वेटेड इन मंडी फॉर अ कपल ऑफ डेज, बट देयर वाज नो वे फॉर मी टू रीच, सो आई वाज स्माइलिंग दैट देयर इज सम पावर दैट इज टेकिंग केयर ऑफ मी, अब यहाँ से अच्छा ही होगा। Love it. तो उसके How you बाद, see the silver lining. उसके बाद मेरे को, no, but that is, it was not a manufactured thing. It was what I was feeling. You didn't तो want, yeah. उसके बाद मेरे को अचानक से मेल आता है कि we've given you a grant. I had applied for this fellowship at O'Shaughnessy Ventures. Yeah. They were searching for quote unquote like some geniuses or whatever, और इस टाइप का थोड़ा सा अलग सोचने वाले across disciplines. कोई AI का कुछ कर रहा है, कोई spaceship. So they were searching for 12 people who they were to give $100,000 each. Wow. So they had sent me a mail that you are our final shortlist, but we won't be able to give you the fellowship this year, but we encourage you to apply for it next year. Hmm. But we really like whatever interviews etc. you had done. So 2-3 rounds of interviews और ये सब हुए थे उनके साथ, उनकी टीम के साथ, कि आप लाइफ को क्या देखते हो, मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, ये सब। तो वो उसके बाद अचानक से ना मैंने सोचा कि यार मेरा गाना कंप्लीट हो गया, अब वो भी नहीं हो रहा, तो क्या, आई गॉट अ मेल फ्रॉम देम कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ ग्रांट, we are introducing Oh. a grant program, and you are the five amongst the 5 people who we want to give the grant to, and we want you to also apply for it next year. So they gave me a $10,000 grant. So that helped me make Chor, Make a and that video. helped me led me to Banaras, and that made the film happen, and then the song worked. So now they gave me a good the main fellowship as well this year. तो तो आई एम सेइंग कि मेरे पूरा मैजिक वो है, अब इसी ये गाने में भी उनसे Hmm. जाके कह दे, मैं Hmm. कह दो, मैं तो मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ यूनिवर्स को, आपका मतलब अंदर वो, connection बहुत strong है. You're turning the tides in your favor. मतलब अंदर वो हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा उसमें, वो हो रहा है। अगर वो होना चाहता है तो मैं तो वो भी करता है, यार क्यों नहीं हो रहा, वो भी चलता है मेरा। ऐसा नहीं हो रहा कि मैं सिर्फ उठ के डांस कर रहा हूँ कि वाह मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है। जब आपकी मुश्किलें हो रही है तो आपको Yeah. पेन भी बहुत हो रहा है, राइट। Yeah. अब मैं उनसे जाके कह दो शूट करने जा रहा था, तो आर प्लान वाज, आर वीडियो कॉन्सेप्ट वाज नॉट द चॉइस बिटवीन दीज फ्लावर्स, द डेड and the fresh. Our concept was earlier that I was holding these dead flowers and Hmm. it's in a massive desert. Hmm. And throughout the video, I'll be plucking out the flowers, the dead petals. And then midway, I reach these greens in Kerala and I find red flowers and I take those red flowers and I go back to the desert and I plant those roses in a desert. That was the original concept. Oh, that's also very nice. But That was what we had cracked. okay.
बट क्या हुआ, और हमारा सारा प्लान शॉर्ट था, मतलब कच्छ में हमने शूट करना था, इन दोज वाइट डेजर्ट Yeah, मैसिव। yeah, run. एंड Mm, और हम जैसे ही जा रहे थे, मेरा सब लॉक था, टीम लॉक थी वहां पर, द प्लान, द शेड्यूल, एवरीथिंग वाज लॉक्ड। mm, वी वर गोइंग टू गो देयर ऑन द 12th, एंड वो इंडिया पाकिस्तान की वॉर शुरू हो गई, mm, एंड वी वर प्लानिंग टू शूट 30 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर। Oh God. तो अब मेरे को था कि यार ये क्या हो रहा है अब, बड़ा पेनफुल होता है वो अबे, प्रोसेस में। हाँ. लेकिन मेरे को था कि अब ये हो रहा है, तो मैंने बहुत कोशिश करी। फिर मैंने दुबई में जाने का भी ट्राई किया कि यूएई में, अबू धाबी में डेजर्ट कर ले, बट वो भी तब पॉसिबल नहीं लग रहा था कि सबका वीजा एक दिन दो दिन में हो जाएगा, क्योंकि माई एंटायर टीम्स स्केड्यूल वाज लॉक, ये 8 दिन ही हम शूट कर सकते हैं, उसके बाद दे वर ऑल बिजी इन अदर प्रोजेक्ट्स। तो Mm, तो मेरे को था कि अब अबू धाबी भी नहीं हो रहा, तो मैंने बोला सरेंडर, अब जो है वो देखेंगे। जो है हम स्टूडियो में शूट कर रहे हैं और केरला में शूट कर रहे हैं। mm, तो वो जैसी मैंने अपने माइंड में लेट गो किया, तभी वो आ गया कि देयर इज अ सीज फायर। तो मेरे लिए इट वाज लाइक अ सिग्नल दैट इट इज नॉट मेंट टू बी लाइक दैट, okay. so I'll follow whatever the universe is guiding. So Mm, so and then during the course of the video, the film organically film became a film about this choice between these two things. So that is how the video also happened. So what I'm trying to get at is that a lot of it is also guidance, and a lot mm, of it is like happening organically, and you are in the moment trying to be completely in the moment and create something what you're feeling at that very moment, and staying yeah. true to the feeling in the that very moment. Staying honest to the feeling, and when you were looking at the dead roses and you had the slight smile, and the Yeah. line that was playing was dil sambhalne wala hai, matlab there I was, that moment exactly, I was like ye sabki kahani ek 5 second mein kaise like Right, दिखा दी right, और सुना दी. right. I love it. There are so many actually shots in the video. I was sitting and making notes, but I don't think we have enough time to go over all of that. I want to say that um, uh, this sort of intended emotional arc or the narrative arc of the song, that you then had to break down into several different shots in the video. Um, how long did that process take when you were in edit? Long time, Yeah, because वहीं long पे time, पूरी story आप बताते हैं edit में, है ना? long time. Because we had like 3, 4 edit drafts that was not working for me at all. Then Really? Oh. yeah, yeah. Because it's like one of those songs, right? Like कि आप, क्योंकि I have lip synced in a lot of places, and there Hmm. is so much footage that you can make anything out of it. Hmm. You can नैरेटिव नैरेटिव तो कुछ नहीं है गाने का। नैरेटिव तो सिंपल है कि मेरे हाथ में डेड रोजेज है, और फिर मेरे को रेड रोजेज मिले, और फिर मैं उसके बीच में चॉइस कर रहा हूँ, मैं इवेंचुअली चूज कर लिया, तो नैरेटिव तो सिंपल है। बट इट्स दिस फीलिंग दैट यू आर Yeah, it's a story. Your yeah, गेटिंग इन, कि आप कितने लंबे एक शॉट को रखते हो, yeah, exactly. कितना लंबा आप रख रहे हो, और कितनी देर आप वो बात कर रहे हो वो शॉर्ट्स में, और कितनी देर आप होल्ड कर रहे हो, क्योंकि आज की डेट में कोई गाने ज्यादातर रहते हैं, Yeah. आप देखोगे कि अगेन वो फियर ऑफ द ऑडियंस, द idea is that you don't hold the cut for more than 1 second or 2 seconds, because you are so fearful that the audience will lose. Yeah. Tuck, 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 tuck. Every cut is like this. If you just technically go, mostly people, everything is focused कि आप, और मेरे गाने में साथ साथ, वो गाने में 7-7, 8-8 सेकंड के कट्स हैं, तो आप जो बोलो Yes. कि स्टिल इमेज लग रही है, इट्स जस्ट दिस एक्सपीरियंस कि यू होल्ड, like you get into that world. I'm not breaking your getting into my universe. This जो आप बोल रहे हो कि ये हर बंदे की कहानी है, that is also the function of the edit. That is also the function of the Exactly. edit, because you are getting into every image. Like Yes. I'm not breaking your experience while you are getting into that image. Yes. So Exactly. so after 4 seconds, subconsciously is like you either can get completely irritated by why is this image stretching so much, or you can get into that universe. तो तो I got everything into is, it. Yeah, yeah, yeah. हाँ, वो अंदर इमोशन बिल्ड हो रहा है because वो वहाँ पे steady है, आप देख रहे हो. So plus a lot of credit of it has to go to the DOP Jay Charola. He shot it so spectacularly. I think every frame that he's shot, he's composed is nothing short of a painting. And I got yes. really fortunate and lucky with in the entire team, the color gradist, the editor who we jammed with, and like everybody, so many great people, the production crew. So I also have to mention everybody who Yeah. was part of this project, because it wasn't easy.
but they gave their heart to it. They did, and it comes across. But as we wrap up, I want to ask you something about something that I like to know from every artist, because they say that you don't create the art creates you, because a new version of you is born after everything you've created. And how did Unse Jaake Keh Do shape you, and what has it taught you about yourself? Like, do you want an honest answer? I think we had a very honest conversation, so I'll give you an Yes, honest answer. मैं कोई absolutely. हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ उनसे जाके कह दो मेरे लिए क्या है. Huh. I'm not saying the meaning of the song, Okay. the feeling that I have around that song. Mm-hmm. So I decided to be a musician in 2015, like October 2000, September, October 2015. This feeling came into my heart that I am to express through music, right? Yeah. And then it's been around 10 years now, approximate 9.5, a Wow. ride for me. Yeah. Like it's not the easiest thing. मतलब no वो zero go, but on a lot of things it's been tough. मतलब fortunately चोर आया चोर चल गया. Mm. Fortunately हर गाना जो मैंने निकाला है, everything has given me a lot of positive feedback. Every performance that I have given, even in 2016 में जाके 17 जहाँ पहाड़ों में भी गया, जहाँ पर भी everything has been positive, but Mm. on like a worldly level, जो पैसा टाइम Yeah. मेंटल आप उसके साथ, क्योंकि आप चेस कर रहे हो ना, आपको रोज अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप उसको मना कर रहे हो. आप Mm. कई बार बड़े पैसे मिल रहे हैं, आप उसको मना कर रहे हो, और आपके यहाँ पैसे नहीं है. तो वो सब आसान नहीं होता, बहुत टफ होता है मेंटली. Yeah. मतलब टफ भी नहीं होता, बट आपको एक इनर स्ट्रेंथ चाहिए होती है, एंड यू पे द प्राइस फॉर द चॉइसेस दैट यू मेक. Yeah. इट्स नॉट लाइक जस्ट रोजी पिक्चर. तो तो उसमें क्या है मेरे लिए ना, इट्स फॉर मी, उनसे जाके कहता हूँ मार्क्स द एंड ऑफ अ चैप्टर ऑफ माय लाइफ इन माय हेड ऑलवेज. दैट इज व्हाट द सॉन्ग वाज, एंड दैट इज व्हाई आई फील इट टुक सो मच टाइम, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग नाइट. जो रात ढल चुकी Mm. सवेरा आने वाला है, दैट इज व्हाट द सॉन्ग फॉर मी मीन्स. Oh. And it's been such a, and that is one of the reasons why I metaphorically think that took so much time to complete, and it took so much. I don't think मेरे अगले गाने इतना टाइम लेंगे, मेरे को नहीं लगता. मेरे को ऐसी इंस्टिंक्टिव फीलिंग है, काफी जल्दी मैं निकाल भी दूंगा. पर ये गाने को चाहिए था, ये मेरे को सेटिस्फाई नहीं करने दे रहा था गाना. इसको चाहिए था इतना टाइम, क्योंकि ये रात मेरी बहुत लंबी चली है. Mm. तो मेरे लिए ये गाना मार्क्स द एंड ऑफ अ नाइट, मार्क्स द एंड ऑफ अ चैप्टर ऑफ माय लाइफ. सो फॉर मी दिस सॉन्ग मीन्स दैट. एंड नाउ व्हाट that morning is, what that light is, we'll see. I cannot predict that, Yeah. but I can. That is what this song means to me. Like this song जो आप बोल रहे हैं ना, चेंज किया है, तो आई फील दिस, क्योंकि मेरे गाने में मेरी एवोल्यूशन का पार्ट है, मेरे गाने ना, उसी ने Yeah. मेरे को एक्साइट कर रहा है. लॉन्ग नाइट का प्यारा वाला गुड बाय है, with love. Love it. That's so beautiful. I'm so happy for you Thank you. that that's Thank what you. it means for you. So I just want to then end by saying, the music space in India, and I think even the world, needs more artists like you. Someone who has such purity of intent and such clarity in intent, and also enough detachment to just allow the truth to shine through in the music. So thank you so much Thank for you. Thank this you. very honest, candid conversation, and for letting us into your world. And also, I have to say, the universe's desire to back you because your intent is so pure is so obvious. And that, I think, is even obvious when that I heard you say the shot of the two birds flying above your head in the last shot of तो Chor. मैं वही बोल रहा हूँ कि उसमें क्या हुआ था ना, अ, वो बर्ड वाले जो चीज था कि मैं गया कर दे मुझे आजाद में. हाँ. बनारस में भी एवरीथिंग इज एवोल्यूशन, क्योंकि बनारस में मेरा पूरा प्लान नहीं था कि बनारस में शूट हो. हाँ, आई वांटेड आल्सो टू एक्सप्लोर ग्रीन एंड शोर एज वेल. तो Hmm. बनारस से जाके मेरा इगतपुरी या फिर इस टाइप पे कहीं पे शूट करने का मन था. बट वो जगह देखी ना, मैंने बोला नहीं, यहाँ पर the video has to have the feeling of only this place. So, and it was a very instinctive thing. So when that happened, right, that shot in Yeah. that wide, extreme wide, the birds flew exactly. It was a single shot. It's not a multiple take of that. It's just one shot, because that it was not allowed to shoot there. That's a no-go proper area in Oh. बनारस. अगर कोई पुलिस वुलिस वाला आ जाता तो शायद पकड़ लेता हमें, लेकिन वो वाला एरिया बिल्कुल वो वाला लैंड है वेयर इट इज नॉट अलाउड टू इवन गो. तो वी शॉट देयर कंप्लीट वाइड शॉट. वो बर्ड जैसी फ्लाई हुए एक सिंगल शॉट में,
मेरे को था हो गया। तो जब 1.5 महीना गाना नहीं चल रहा, दिसंबर को रिलीज किया, 15 जनवरी तक द सॉन्ग हैड 5,000 व्यूज एंड Hmm. 5,000 स्ट्रीम्स। तो Hmm. फिर वो मेरे को था, अगर वो बर्ड आ गए, वो बर्ड आ गए तो बर्ड का काम है गाने को लेके जाना, मेरा काम नहीं है। एंड Yes. देन दैट हैपेंड। Oh, that's so तो beautiful. It's a beautiful thought. It या did. सो आई The एम birds carried the song through Yeah, to so the I'm a fest. believer of that. So even like with this song and when maybe the other things that I do, it's I how much can I control? It's almost impossible to make things or your mark in this world of music. It's almost you are fighting almost every odd, right? आप Hmm. 10 करोड़ भी डाल दो मार्केटिंग में, 50 करोड़ कुछ भी कर दो आप, नहीं कुछ नहीं बदल सकते। इट्स एन इम्पॉसिबल टेरिटरी टू ऑपरेट इन ऑन अ लॉजिकल टेक्निकल लेवल। Yeah. मतलब म्यूजिक में देयर इज सो मच मनी, सो मच मार्केटिंग, सो मच कंटेंट, सो मच एवरीथिंग एंड सो मच algorithm and so much of everything that's happening, so it's almost impossible for an artist to make way for himself. तो Yeah. तो वो मैं समझता हूँ। लेकिन लेकिन अगर यूनिवर्स चाहेगा तो अपने आप रास्ता बनाएगा, वो मेरा काम नहीं है, उस पर मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ। So if the universe wants me to grow and wants my music to reach out to people, then it's the universe's job to figure out ways for it, is And the what I birds will believe. appear. Yes. The birds have to figure out their own way to fly and Right. make the song fly. Yeah. Exactly. Love it. Thank you so Amazing. much for being who you Thank you. are and for Thank you. creating the art that you're creating. It's moving souls, it's touching souls, exactly the intent in the studio when you sit with your producer. Soul touching. Chandrabindu. It's चंद्र happening. बिंदु, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो अगेन लाइक आदित्य, वैभव, with whom I mixed the song, and so many people. So everybody, the team at Warner who are working really hard on Yeah. the song. So many people are so Yeah. many people are involved in uh, making a thing happen, that it's not like कि मैं खुद अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो देर आर सो मेनी people who are involved, and I am grateful to everyone, and I'm grateful to you for this conversation because you made like a very safe space and a good vibe जिसमें पूरी मैं इतनी conversation दिल खोल के बात करी। तो thank you to you. Thank you. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you. And Same here. all the best. The Thank universe you. is backing you. We can see it. And जो upwards and यूनिवर्स की onwards. मर्जी, जो Ah, यूनिवर्स की मर्जी, मैं कंट्रोल क्या कर सकता हूँ? मतलब जो जो यूनिवर्स चाहे वही होगा, मेरे हाथ में क्या है? हाँ, मेरे हाथ में तो बस एक गिटार है, थोड़ा गा दूंगा, उसके बाद जो होना है वो होना है। हाँ. आपका तो कर्म वही, है बस. That's it. So, बिल्कुल। more power awesome. to you. Thank you so Thank you much, to you Yus. as well. Take Thank you. care. Thank you. You too. Thank you.